Namaste dear all students. Now welcome back in lecture number 4. Now our today's topic or discussion is representation of rational number on a number line. Right? Now students see here I write a three example of means natural number, how to represent the natural number on a number line. Now let us see one by one their solution. Now how the number can be represented on a number line. Now see here I write here a natural number. Now you know that the shape of natural number that is begin from 1, 2, 3, 4 dot up to we can write it down infinity. नाउ इफ सपोज आई से अगर मैंने यहाँ पे बोला कि आपको टू जो नंबर है ये टू नंबर को ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे देख लो ये टू जो है यहाँ पे ये बन गया आपका टू एंड दैट टू विल रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन राइट. Now after that for the whole number means the whole number set that is start from 0 means including 0 if a natural number is called as whole number. Now after that see here it's one scale 0 1 2 3 4 right. See only here 0 we cannot include because these are the number line for the natural number. Here we include a 0. This is for the whole number right. Now after that here dash up to infinity right. Now after that for integer say we have to draw. Now see this number line is for integer. It is getting started from 0 1 2 3 4 dash again here -1 -2 -3 -4 dash right. Now student see in that question for the whole number if I say represent 3 on a number line. Now see here is 3 that 3 can easily be represented on number line. Now in that question if suppose ask represent -3 on a number line right. Now see here is the -1 and that -1 we can represent on a number line. Now these are the basic for that we learned or that we studied in a previous classes, that is class number 7. Now today's our topic is how to represent the rational number on a number line. To represent the rational number on number line, now student again I want to express that is a definition of rational number. Now in first lecture we learned the number which can be expressed is in the form of p upon q where q is not equal to 0 and p comma q r belongs to here see that is integer. Now see why it is belongs to integer means ये जो भी रहेगा p and q means क्या है जो भी rational number रहेगा और rational number का numerator and denominator और ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रहेगा ये कौन सा रहेगा ये इंटीजर सेट का रहेगा -4 -3 -2 -1 मींस कोई भी नंबर रह सकता है वेदर इट इज नेगेटिव पॉजिटिव और 0 राइट. नाउ दैट साइन इज ऑफ बिलोंग्स टू. Now after that our today's topic is how to represent but the rational number on a number line. See student I am giving you here one example that is for the proper fraction. Now easily we can say that proper fraction if suppose I say that represent that 2 upon 3 on a number line. This is my question number 1. Now first see how to draw the number line for the rational number right. To draw the number line for the rational number, now let us draw here one line right. Now while drawing this line now let us take 0 in between. Now here the number line we can draw same as the integer right. Here see here is 1, here is 2, here is 3, again here is -1, here is -2, here is -3. My question is that here represent 2 upon 3 on a number line. Now student if you remember while dividing 2 by 3 here we can getting 0 point something right. Now let us see 3 divided by 2 here 0 point here 2 6 18 again 2 we are getting right 0 again means 0.666666 we are getting right. आपको ये तो पता है ये जो 0.6 है ये कहाँ से कहाँ पे रहेगा 0 और 1 के बीच में रहेगा. इसका मतलब ये रैशनल नंबर लाइन पे वो कहाँ पे नंबर पता नहीं लेकिन यहाँ पे जो है वो कौन सा नंबर रह सकता है रैशनल नंबर रहेगा
right? Means that 2 upon 3, this number lies in between 0 and 1. Why? While doing the division, here result we obtain 0.66. Now once we obtain the result 0.66 means why शो मीन्स मैंने आपको क्यों करके बताया, क्योंकि डिवाइड करने के बाद में 0.66 रहेगा, ये 0 और 1 के बीच में कौन सा नंबर आने वाला है 2/3, बट उसे रिप्रेजेंट कैसे करना है। नाउ यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर लो स्टूडेंट, मेरे को बताओ अगर यहाँ पे मैंने किया जितना यहाँ पे डिनोमिनेटर है, हियर डिनोमिनेटर इज 3, मेक द 3 पार्ट्स। नाउ सी 1, दिस इज पार्ट फर्स्ट, this is part second and that part is third. Now while making the third part, don't get confused. Some students are doing, they are drawing here 3 lines 1 2 3 4, but there are total number of lines are how many? 4. No, here we have to draw only 3 part, 1 2 3 part. Now students see, if suppose if you consider this is 0, now tell me that 0 upon 3 means here we are obtaining 0, right? Now this part is here 1/3, this part is here 2/3 and this part is here 3/3. 3/3 means how many? 1, right? Now again if you continue the same, now see of the denominator is 3, it means that -2 and -3 के बीच में आने वाले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 3 पार्ट रहेंगे। -1 और -2 के बीच में आने वाले यहाँ पे टोटल कितने पार्ट रहेंगे? 2 पार्ट रहेंगे। 0 और -1 के बीच में यहाँ पे टोटल 2 पार्ट रहेंगे, लेकिन ये जो 1 ये जो 2 रहते हैं ये लाइन थोड़े आपको बड़े खींचने हैं, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपकी इस तरीके से। यहाँ पे टोटल कितने पार्ट रहेंगे? 2 रहेंगे और ये 3 है। यहाँ पे कितने पार्ट रहेंगे? 3 पार्ट रहेंगे, सॉरी 2 ले रहेंगे। ये 2 पार्ट रहने के बाद में ये बन गया मेरा 3/3। अब इसे मैं डिनोट करूंगा यहाँ पे 3 तो हो गया, यहाँ पे देख लो। उसके बाद में मैं इसे लिख सकता हूँ 4/3, राइट? ये मेरा बन जाएगा 5/3 और ये मेरा बनेगा पार्ट, ये पार्ट है मेरा 6/3 एंड 6/3 means how many? 2. Hope so you understand. Same we can do for the left hand side for the negative integer, but our question is that to represent 2/3 on a number line. Now see student, this is the position of 2/3 on a number line, right? Now this is the basic. Now one question you can write down, represent 2/3 on a number line, right? Now this is the basic idea to represent the number on a number line. Now while writing that, now see here question number B, represent -2/3 on a number line. Now see here 0/3 means 0. Here see that point I am showing, that is -1/3. This point is -2/3 and this point is -3/3. अब आप मेरे को बताओ -3 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला? -1। आपका -1 मीन्स ये, राइट? मीन्स 0 to 1। और मेरा क्वेश्चन था रिप्रेजेंट दिस 2/3 ऑन नंबर लाइन, मींस ये जो 2/3 है आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया, राइट? अगर मैं क्वेश्चन नंबर सी, आपको ये लिखना है क्वेश्चन नंबर सी, अगर मैं लिखूंगा रिप्रेजेंट -1/3 ऑन अ नंबर लाइन। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो, ये है मेरा -1/3 और -1/3 का जो पॉइंट है ये है, इस ये नंबर आपने रिप्रेजेंट किया। देख लो जो भी नंबर मेरे क्वेश्चन में है मैंने उसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? सर्कल में जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे मैंने सर्कल में लिखे और मैंने उसे क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। एक चीज याद कर लो, जिसको ये समझ में आया, मींस 6/3 मींस 2 मींस दिस इज their point is 2। इस रैशनल नंबर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको जो नंबर सिस्टम है, नंबर लाइन है, वो इंटीजर की ड्रॉ करनी है। इंटीजर की नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको एक ही चीज करना है, जो भी नंबर रहेगा उसका डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर देखने के बाद में जहां पे आपको 0 to -1, यहाँ पे जितना डिनोमिनेटर है उसके वो एक 0 to -1 का जो स्केल है वो स्केल के उतने आपको क्या करने? पार्ट करने हैं। पार्ट करने के बाद में आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बट ये क्वेश्चन में आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, आपके दिमाग में आया होगा, क्या सर अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी मैं लिखूंगा, मैं 3/4 अगर आ गया तो मैं क्या ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? नहीं, आप नहीं कर सकते,
क्योंकि देख लो ये जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन के पार्ट कितने 4 है, उसके लिए आपको अलग से क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, नंबर लाइन। नाउ ये जो नंबर लाइन है, ठीक है, आप ये सिर्फ फिल अप, यू कैन अंडरस्टैंड ओनली दैट ए बी सी, दैट three question. Now this is our question number 1, and in that question number 1 I give sub question a b c, right? Now see the question number 2, आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए वो क्वेरी कौन सी कि क्या सेगमेंट 2 1/4 को ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्या, उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now here the second question, question number 2. Now how to represent, now here sub question 1/4 on a rational on a number line. Now again student draw a number line. ये जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है इंटीजर की, इधर जो आएंगे लेफ्ट हैंड साइड को 1, सॉरी टेक सम स्पेस इन बिटवीन। नाउ दिस इज 1 2 3, means this is 1 2 3, right? Now after that this is -1, this is -2, this is -3, but see here denominator is 4, means at least 4 numbers should be there on the number line, right? Now these are the 4, either be infinite, either be infinite, वो number a नहीं होते। now a होने के बाद में here we are interested to represent that 1/4 on a rational number line. Now to represent that 1/4 on a rational number line, now let us see here that 1/4 of course that lies in between 0 and 1, right? But where that number lies, now students see 0/4 यहाँ पे अपने को मिलेगा 0, ठीक है। आफ्टर दैट फर्स्ट में 1 2 3 1 2 3 4 पार्ट बनने के बाद में ये जो रहेगा आपका, ये रहेगा 1/4, ये जो लाइन रहेगी ये रिप्रेजेंट करेंगी 2/4, राइट? ये जो लाइन रहेगी ये रिप्रेजेंट करेंगी आपकी 3/4, और ये जो लाइन है ये लाइन रहेगी आपकी 4/4, राइट? मींस 4/4 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे मिलेगा 1, और यहाँ पे आपको 1 मिलने के बाद में देख लो ये है आपका 0 and 1, मींस ये नंबर जो है आप बोलोगे, देख लो जो नंबर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं उनको सर्कल कर रहा हूँ, इसकी जो पोजीशन है ये नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे है। अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर बी बोलूंगा, रिप्रेजेंट द 3/4 ऑन अ नंबर लाइन, आपको एक ही काम करना पड़ेगा, -3/4 दैट इज लाइज इन बिटवीन 0। अब देख लो 1 2 3 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट बन गए, राइट? ये जो पहला पार्ट है 0/4 मींस 0 डिवाइडेड बाय 4, आपको 0 तो मिल गया। ये जो पार्ट रहेगा आपका 1/4 का रहेगा, ये जो पार्ट रहेगा ये कौन सा रहेगा आपका, सॉरी -1/4, ये रहेगा आपका -2/4, और ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा आपका -3/4, और ये जो पार्ट रहेगा आपका -4/4 रहेगा, और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, -1 आएगा, राइट? बट क्वेश्चन इज दैट रिप्रेजेंट -3/4, आप ये नंबर लाइन ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे -3/4 आपको ये पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, राइट? मींस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नाउ सी आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन आपके इसमें आएगा, डायरेक्टली राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4, क्या सर हम राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3, क्या सर ये क्वेश्चन मींस represent here means 3/2 and here instead of writing 2 I am writing 1/4 on a same number line। आपने देखा है जब आपको डिनोमिनेटर एक नंबर गिवन है उसका डिनोमिनेटर के हिसाब से आपको नंबर को रिप्रेजेंट करना है, बट मैंने यहाँ पे देख लो एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूँ मैं, रिप्रेजेंट 3/2 and 1/4 ऑन सेम नंबर लाइन। इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों के दोनों भी नंबर एक ही नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, राइट? ये दोनों के दोनों नंबर एक ही नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नाउ लेट अस सी, राइट? नाउ अब आपको सेम स्टेप नंबर 1 आपको एक ही करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, राइट? एक नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, राइट? ये -1 ये -2 ये -3, ये बन गया आपका -4, राइट? डॉट डॉट डॉट
बट आपको 2/3 मीन्स यहाँ पे ना तो आप 2 पार्ट बना सकते हो ना तो 4 पार्ट बना सकते हो, लेकिन क्या आपको ये सोच है कि दोनों का 2 और 4 को कोई एक कॉमन नंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हो? यस, ये बहुत इजी है। अब देख लो, ये जो 2 है और ये 4 है, मीन्स आप लिख सकते हो एलसीएम ऑफ 2 and 4 is how many? here 4। दोनों नंबर का एलसीएम कितना है? यहाँ पे 4 है। अगर 3/2 दैट नंबर कैन बी डिवाइड एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे 6/4, राइट। अब सेकंड नंबर जो है आपका 1/4 इज इक्वल टू 1/4। अब देख लो, आपको 6/4 और 1/4 को रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट एक चीज याद कर लो, 6/4 मीन्स क्या है? 2 2 जा 2 3 जा, ये नंबर भी क्या है? 3/2 ही तो है। लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन आई कि इनके डिनोमिनेटर जब तक आप इक्वल नहीं, अब देख लो इस 3/2 मीन्स व्हाट? 6/4 और 1/4 मीन्स 1/4। अब 6/4 और 1/4 को आप सेम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो क्वेश्चन का क्या है? आपका सॉल्यूशन है, राइट। नाउ सी हियर, नाउ 6/4, बट यहाँ पे देख लो, नाउ 6/4 वी कैन राइट इट डाउन दैट नंबर इज लाइज इन बिटवीन हियर 1 and 2। नाउ स्टूडेंट सी, मींस हियर 1 2 3 जो भी नंबर है उनके लाइंस जो है ये ऐसे बड़े बनाने हैं, राइट। ये नंबर के लाइन बड़े जब बनेंगे, अब इसमें देख लो 6/4 ये आपका बनेगा यहाँ पे 0/4। मैं 4 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। ये जो है आपका क्या है? 1/4 आएगा। ये जो पॉइंट आएगा आपका ये क्या आएगा? 2 सॉरी दिस इज 0/4। ये जो आएगा आपका ये आएगा 1/4। ये जो आएगा ये कौन सा आएगा आपका? 2/4। ये जो आएगा ये कौन सा आएगा आपका? 3/4। ये ऑलरेडी ये जो है 1 तो यहाँ पे है, लेकिन क्या ये 4/4 भी नहीं है? और 4/4 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे? 4/4 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको यहाँ पे? 1 मिलेगा। इस 4/4 इज इक्वल टू 1 जब मिलेगा, यहाँ पे मेरे को इक्वल टू 1 आ गया। अब ये जब जैसे ही मेरे को 1 मिल गया, बट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू रिप्रेजेंट 1/4। स्टूडेंट मैं 1/4 तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये है मेरा पॉइंट 1/4 का। देख लो, जो नंबर मेरे को रिप्रेजेंट करना है मैंने यहाँ पे लाइन खींच ली। अब बची बात 6/4। अब 6/4 मीन्स, अब देख लो 6/4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? मीन्स 2 इंटीजर सॉरी राइट इट डाउन 6 डिवाइडेड बाय, आप जब 4 करोगे 4 बन जा 4, हियर इज 2 मीन्स 1 इंटीजर 2/4 भी लिख सकते हो, राइट। अब 1 इंटीजर 4, अब देख लो ये तो कंप्लीट 1 पार्ट बन गया। अब बचा क्या? 2/4 वाला, राइट, मीन्स 1 2 3। अब ये देख लो 4/4 तक तो आप आ गए थे। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? 5/4। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? 6/4। तो यही तो नंबर आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना था। मीन्स नाउ दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दैट रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, tomorrow we will see the variety or different types of questions based on representation of rational number on a number line. Thank you. Now here see the next question number 4, that is a represent the rational number on a same number line. Means see here I gave you the 5 question. Now student, today you have to do the practice of this 5 question. Now see here is somewhere here the denominators are equal, then no need to take the LCM. Here see you have to take the LCM of this is here how many? 10, right? Means you can multiply that 5 by 2. Now see here is also denominator not equal, take LCM is 6. Now here is also LCM 6, multiply by that 2 by 3 means 6 is LCM. Now here in that question see, now two possibilities are there. You can take the LCM, means see here we can write it down 5, but don't do like this. Now some students are using such a method, 5/25 they can convert 1/5, but this is totally wrong. Now at anyhow you have to make the 3/5, means here see 5 multiplied by 5 and 3 multiplied by 5
is equal to 15 upon 25. Now see student, here are 15, 25 are there, means don't ask the doubt. Now you have to make, अगर 0 और 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आपको टोटल 25 यहाँ पे पार्ट बनाने पड़ेंगे, तब जाके नंबर को क्या कर सकते हो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. नाउ लेट अस सॉल्व दिस होमवर्क एंड सेंड ऑन मी, राइट? आई एम वेटिंग फॉर दैट. थैंक यू.